Hello students, I hope the previous videos you must have gone through and you have understood the things. So please be vigilant. Whatsoever you may not understand, you can ask me anytime. So today we are going to start with the female reproductive system. So female reproductive system has the ovaries as the uh, primary sex organ. I told you before as well that primary sex organs are those which help in the production of the gametes and the related hormones as well. So ovaries and the secondary sex organs are the oviducts, uterus, cervix, vagina, and external genitalia, as well as the breasts or the mammary glands, so to say, and associated glands, which are mammary glands, right? Okay. So I'll draw the diagram and you will take into, you have to be cautious about the drawing because in your exams you can be asked to draw a well-labeled diagram of the human female reproductive system. So a pair of ovaries are present in the abdominal, I must say in the pelvic region. There is a pair, okay? The pair of ovaries, the ovary which are 2 to 4 centimeter in length. So one over here and one like this. Now these ovaries are present in the lower abdominal portion, so to say the pelvic region, and they are held in position by various ligaments which help to keep them in position. These ligaments may join them to the uterus or to the body wall. Okay, so these ovaries, I'll let you know the detail of the ovaries. So these ovaries, and then these from here, the oviducts, the two oviducts. This is the oviduct from here, right? And similar is the case over here. This is the oviduct. You have to erase this portion, this line you have to erase. Okay, I'll explain it. You just see first, right?
See, the ovaries, they are held together. I told you before that maybe there can be the ligaments, right? And यहाँ से भी ligaments रहते हैं, so इसकी attachment में जो ये है मदद करते हैं, right? Now these oviducts, these are 10 to 12 centimeter. These are 10 to 12 centimeter long, right? So this portion, which is the broader portion, which helps, which is having the finger-like projections, these finger-like projections, these are known as fimbriae. And this portion, the broader one, that is the infundibulum. This infundibulum further leads into the ampulla portion, and then is the isthmus, ठीक है? और इसके बाद ये लीड करता है into this uterus, from here also and from here also, ठीक है? अब ये जो फिम्ब्री हैं, इसमें सीलिया रहते हैं which help in the contractions, rhythmic contractions. क्यों? क्योंकि जब इसमें ओवा प्रोड्यूस होता है, that they are the gametes, ओवा जो है वो ओवरीज में प्रोड्यूस जब होता है, तो वो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. तो ये ओवा, अब इसके जैसे सपोज ये फिम्ब्री हैं, इसकी इस तरफ यहाँ पे, मैं जैसे यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे एक पोर होता है, उस पोर को हम बोलते हैं ऑस्टियम. ऑस्टियम जो है वो एक होल जैसा रहता है. अब ये होल जो है ये हेल्प करता है, जब ओवा प्रोड्यूस होता है तो ओवा जो है वो इस ऑस्टियम से एंटर करता है, बट विद द रिदमिक कंट्रैक्शंस ऑफ द फिम्ब्री फ्रॉम द इनफंडिब्यूलम. यहाँ से कंट्रैक्शन होती है और ये ओवा को लेकर ऑस्टियम में एंटर कर जाता है, और ऑस्टियम से ये यहाँ से एम्पुलरी पोर्शन से होता हुआ ये यहाँ से फिर इस तरफ आता है. अब ओवा के साथ क्या होता है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन होती है, लेकिन अगर नहीं होता तो वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस, वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगी. अभी आपको एक डायग्राम जो मैं समझा रही हूँ, पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए, फिर मैं डिटेल बताती हूँ. अब फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इन दोनों पोर्शन के जंक्शन में, यहाँ पे कहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है अगर स्पर्मेटोजोआ आता है, राइट? अब यहाँ से ये यूट्रस जो है ये इसके जो शेप रहती है, वो यूट्रस की जो शेप है वो है इन्वर्ट. वो कैसी होती है? जैसे पियर होता है, पियर को हम इन्वर्टेड कर दें, उल्टा कर दें पियर को, तो उसकी इस तरीके से शेप रहती है. इसको हम वॉर्म का नाम भी देते हैं, वॉर्म को भी, यूट्रस को वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये इन्वर्टेड पेयर होता है की तरह रहता है, और इसकी जो लाइनिंग है, इसकी जो यूट्रस की जो यूट्राइन वॉल है, ये इसमें 3 लेयर्स रहती हैं. जो आउटर मोस्ट रहती है उसे हम बोलते हैं पेरीमायोमीट्रियम, ठीक है? और ये बीच में जो रहती है मस्कुलर, इसे कहते हैं मायोमीट्रियम, ठीक है बेटा? और जो ये अंदर वाली लाइनिंग रहती है इसे बोलते हैं एंडोमीट्रियम या एंडोमीट्रियल लाइनिंग. मतलब जो यूट्रस की वॉल है वो बीच में जैसे मस्कुलर है, और ये रहती है ग्लैंड्यूलर, ये ग्लैंड्यूलर रहती है, ये मस्कुलर रहती है, ठीक है? और ये जो है ये बिल्कुल थोड़ी हार्ड एंड फाइब्रस रहती है, क्योंकि इसे बाहर सपोर्ट देना है बॉडी वॉल के साथ, ठीक है? अब ये ऊपर से इसकी जो रहता है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं फंडस. ऊपर जो ये यूट्राइन का फंडस पार्ट है, जो डोम शेप आपको नजर आ रहा है, फंडस पार्ट, ये बॉडी यूट्रस की जो बॉडी है वो ये वाला पोर्शन रहता है, ठीक है? अब ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सर्विक्स. सर्विक्स का ये जो पोर्शन है, दिस वन, इसे बोलते हैं इंटरनल ऑस. और ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, ये ओपनिंग जो दिख रही है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस. अब ये डायग्राम मैं पहले ड्रॉ करके रख दूं तो उसमें मेरे लिए तो आसानी रहती है, बट आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने
ड्रॉ करना चाहती हूँ और आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ। तो डायग्राम जो है वो सुंदर बने ना बने, लेकिन मेरा पर्पस है कि आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ये एक्सटर्नल ऑस। अब ये जो कैनाल बन गई बीच में, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के बीच में जो ये कैनाल है, इसे हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है बेटा। और ये जो पोर्शन रहता है बाहर की तरफ, ठीक है, ये दिस पोर्शन इज नोन एज वेजाइना। अब यहां से लेके ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, इसे हम बर्थ कैनाल का भी नाम देते हैं। जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो ये बर्थ कैनाल है थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन होता है बच्चे का बर्थ। पार्चुरेशन जो होती है वो ये बर्थ कैनाल से होते हुए, और उसके बाद जो वेजाइना है, यहाँ पे बाहर जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसे आप कह सकते हो मेजरा, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस रहता है। मॉन्स प्यूबिस जो है ये फैटी टिश्यू है, जिस द कवर्ड ओवर बाय द हेयर, एंड उसके अंदर की तरफ आप कह सकते हैं कि इसमें पोर्शंस रहते हैं जिसे हम कहते हैं लेबिया मेजरा, ये फ्लैप्स रहते हैं, और दो जो है पेयर में रहते हैं लेबिया माइनरा, ठीक है। ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया को, जो वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको ये कवर करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस, मतलब ये जो सिस्टम है ये रहता है। अब इसके साथ ही साथ जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो भी मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओवरीज के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अब जो ओवरीज हैं, मैंने बोला पेयर्ड हैं, ठीक है, लेकिन जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी तो हमने ये बोला था कि जो टेस्टिस हैं वो प्यूबर्टी पे, एडोलेसेंट पीरियड में वो मतलब कि पूरी तरह से स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। लेकिन अगर हम इसकी कॉन्ट्रेरी बात करें ओवरीज की, तो ओवरीज का जो डेवलपमेंट है वो फीटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही इसका जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस दौरान दोनों ओवरीज में लगभग हर एक ओवरी में लगभग 2 मिलियन ऊगोनिया जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ऊगोनिया फीटल डेवलपमेंट में बन जाते हैं, और बर्थ के बाद नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ के बाद कोई ऊगोनिया नया नहीं बनता, लेकिन जब जो भी बनता है वो फीटल के दौरान बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट है, अब मैं जैसे आपको डायग्राम भी बताती हूँ ओवरी का। तो ओवरी का जो डायग्राम, जैसे कि अब ये जो मैंने बताया, इसमें मतलब कि आर्टरी का जाना और वेन का जाना, ठीक है। अब ये जो आउटर वर्ड्स जो है, ये एपिथेलियम, बिल्कुल थिन एपिथेलियम से ये कवर्ड रहती है, ठीक है, थिन एपिथेलियम से ये कवर्ड रहती है। और अंदर से अगर आप देखें, ये आगे ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा पार्ट है जिसमें बाकी जो डेवलपमेंट है ऊगोनिया की या oocytes की वो रहती है, ठीक है। अब जो ये स्ट्रोमा है ये डिवाइडेड है इनटू 2 पोर्शंस। बाहर की तरफ हम इसको बोलते हैं डेंस कॉर्टेक्स, ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स का नाम दे दिया जाता है, और जो सेंटर वाला है इसको हम मेडुला का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला बर्थ के बाद तो ऊगोनिया और होंगे नहीं। अब ये जो है जर्मिनल एपिथेलियल जो लाइनिंग है इसकी, अब ये जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग ये पूरी रहती है। अब इसमें से ही ये स्ट्रक्चर्स जो है, जैसे एग ट्यूब का बनना, फिर ये ट्यूब बन जाती, इसी तरीके से इसमें से कोई जब फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही इसमें क्या होता है कि आपको मियोटिक डिवीजन याद होगी जो मैंने बात की पहले भी। अब मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 ये तो हो जाता है फीटल में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बाकी जो फर्दर डिवीजन है दैट इज अरेस्टेड, फर्दर डिवीजन इज अरेस्टेड। जैसे कि मेटाफेज प्रोफेज के बाद आना था ना मेटाफेज 1, अब ये मेटाफेज 1 से आगे ये जाएगी नहीं, ठीक है। इसके आगे ये प्रोफेज 1 के बाद ये मेटाफेज 1 पर अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे
जब जब एडोलेसेंट पीरियड आता है, उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यहाँ पे कोई एक, जो इसमें क्या रहता है कि जैसे एक कोई प्राइमरी oocyte, एक oogonia जो है वो डेवलप हो जाता है और वो अपने आप को अलग कर देता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर जो है वो इसको सराउंड करती है। अब ये इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल जो है ये इस समय बन जाता है जब एडोलेसेंट पीरियड जो है स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। क्यों? क्योंकि उस दौरान फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होना स्टार्ट होता है और इसके ही इन्फ्लुएंस में ये फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल जो है, फिर आके ये मतलब कि डेवलप करना स्टार्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल जो है, इसके बाद ये इसकी सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या रहता है, और लेयर्स जो है इसको इनक्लोज करती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। इसी तरह से और एक अब आगे स्ट्रक्चर क्या बनता है कि इसमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है और इसमें छोटी सी कैविटी जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम ये फ्लूइड फिल्ड रहती है और इसके आगे पीछे जो है बाकी लेयर्स जो हैं वो सेल्स की ग्रेनुलोसा लेयर्स जो है वो रहती हैं। और ये इस तरीके से टर्शरी फॉलिकल के बाद ये एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाहर बहुत सारी लेयर्स हैं और बीच में ये कैविटी है और ये इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब ये इस स्टेज पे यहाँ पे जो है मेटाफेज जो है वो आगे फर्दर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो यहाँ पे होती है, जिसे हम कहते हैं कि अब यहाँ पे सेकेंडरी, प्राइमरी तो ये बन गए ना, इसमें 3-4 टाइप्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनता है, जिसमें कि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने के बाद इसमें, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है वो अनइक्वल होती है। अनइक्वल का मतलब कि एक बिल्कुल छोटी सी पोलर बॉडी निकलती है, एक छोटी सी पोलर बॉडी निकलती है और जो दूसरा है ये बहुत बड़ा सा, ऐसे यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte जो है वो निकलता है, ठीक है। ये इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी सेकंड जो मियोटिक डिवीजन है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। अभी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte बनने के बाद ये यहाँ से इसकी ओव्यूलेशन हो जाती है और यहाँ पे FSH के बाद LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो निकलता है और जिसके इन्फ्लुएंस में ओव्यूलेशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, ये मैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी तो आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। 14th डे पर ओव्यूलेशन होगी और सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज कर दिया जाता है और ये जो पीछे बच जाता है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ओवरीज हैं वो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है इनकी FSH और LH के इन्फ्लुएंस में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये पूरी का पूरा ये। अब इसके बाद जब हम बात करें कि यहाँ से मैंने बोला आपको कि फिम्बरी की मतलब बीटिंग, एक और यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि ये जो ओवरीज हैं दे वर्क अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब है कि एक मंथ में एक ओवा निकालती है और दूसरे में दूसरी ओवरी, सो दैट कि यहाँ पे अनइक्वल क्यों होती है, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte होगा उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लीट सेल ऑर्गेनेलिज भी होने चाहिए और जो साइटोप्लाज्म है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसको फ्यूचर बेबी को अगर बर्थ देना है तो इसलिए ये डिवीजन अनइक्वल रहती है और इस तरीके से ये फंक्शन करती हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक 28 डेज में कंप्लीट होता है उसमें एक ओवा निकलता है और वही ओवा जो है आगे जो है वो फ्यूचर जनरेशन को बर्थ देने में होता है। अब आगे अगर यहाँ से ये ओवा जो है ये अगर रिलीज हुआ और ये यहाँ ऑस्टियम और फिम्बरी की मदद से ये ओवा यहाँ से जाएगा और अगर स्पर्मेटोजोआ होगा तो यहाँ से वो स्पर्मेटोजोआ जो है वो इस तरीके से यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं तो उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो जब 28th डे पर होता है तो यहाँ पे आप देखें
कि ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर जो ये लाइनिंग है बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड हो जाती है। ये बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो में ब्लीडिंग की म्यूकस वगैरह जो ओवा वगैरह जो है वो जब यूटिलाइज नहीं होता तो दैट इज़ रिलीज्ड थ्रू द विजाइनल ऑरिफिस। तो ये जो अब आज जो है ये आपको जो मैंने जितना भी पढ़ाया है ये आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद मैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि मेमरी ग्लैंड्स जो है आपको मालूम है कि ये बच्चों को फीडिंग करने के लिए पार्चुरेशन के बाद और कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये काम करते हैं। तो अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। ब्रेस्ट्स के अंदर मेमरी लोब्स रहते हैं और ये जो ईच मेमरी लोब्स होते हैं ये ग्लैंड्यूलर है। ग्लैंड्यूलर का मतलब होता है सिक्रीशंस निकालेंगे और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनको वो एल्व्यूलाई हम बोलेंगे। इसके आगे अंदर जो ईच लोब जो है वो डिवाइडेड इनटू एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई जो है ये सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं मिल्क को सिक्रीट करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये यहाँ पे ल्यूमन इसकी ल्यूमन में स्टोर होने के बाद एल्व्यूलाई ओपन होते हैं इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। ये मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होंगे और ईच ट्यूब्यूल जो है वो किस में जाएगा? इनटू मेमरी डक्ट। ठीक है। अब ये मेमरी डक्ट जो है कुछ मेमरी डक्ट्स जो है वो ज्वाइन करेंगी और वो ओपन होंगी इनटू मेमरी एम्पुला। और ये जो मेमरी एम्पुला है ये किसके साथ जुड़ा होता है आगे? लेक्टिफेरस डक्ट के साथ। और लेक्टिफेरस डक्ट जो है यहाँ से जो मिल्क है वो दैट इज इजेक्टेड आउट आफ्टर ऑन द सकिंग ऑफ द न्यू बेबी बॉर्न, राइट। तो इसके बाद जो आज जो है ये आप लोग डायग्राम और इसके जो स्ट्रक्चर और इसकी सब कुछ आज जो कर लेंगे इसके बारे में, और ओवरी का स्ट्रक्चर जो है वो भी कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।